हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज हमारे साथ डॉक्टर अजमीना जहानी है, जो कि एक विमेन स्पेशलिस्ट है विद ओवर 25 years of healthcare experience in Canada. She is an ICF associate certified coach और certified menopause coach भी है। उन्होंने मास्टर्स डिग्री किया है एडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में from University of Toronto, and she specializes in also she's taken specialized training in addiction and mental health from McMaster University. डॉक्टर अजमीना मानती है कि ट्रू वेलनेस इज होलिस्टिक एंड जिसको माइंड और बॉडी दोनों तरफ से एड्रेस करना चाहिए, एंड शी इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट creating sustainable effective pathways for women to feel empowered, healthy, and fully in charge of their well-being. So, welcome, Dr. Azmina. Thank you so much for coming to our channel. Thank you for inviting me, Minaz, and thank you for the kind introduction. Just hearing it from somebody else, थोड़ा different लगता है, but yeah, thank you. But I am really honored to be here. Thanks. Thank you. तो डॉक्टर अजमीना, आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में, और what is the differences that a woman sees in herself after menopause. तो बॉडी में क्या डिफरेंस आते हैं आफ्टर मेनोपॉज? So I think the reason I'm so passionate about this field कि मैं खुद इसमें से जब when I went through this in say about 5 years ago, there's so much that goes on in the body, not just physically but mentally or psychologically भी, because of the hormones that are going away, right? So हमारा estrogen निकल जाता है, progesterone कम हो जाता है, हमारी ovaries sort of are shutting down. So the body changes a lot because of those hormones. और लोगों का परसेप्शन ये है कि इट्स जस्ट द पीरियड स्टॉपिंग एंड दैट्स इट, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मेनोपॉज के जो इफेक्ट्स हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर टॉप ऑफ योर हेड, आपके बाल, आपकी ब्रेन, आपकी बोन, आपके हार्ट से लेके बिल्कुल अंदर तक, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, सबको अफेक्ट करता है ये। एंड व्हेन आई यूज्ड टू रीड अबाउट इट, इतना strike नहीं होता था, but when I myself went through it, I realized that it's so much to bear for a woman, और लोगों को इतनी information नहीं है, और especially medical doctors को भी इतना medical school में नहीं पढ़ाते. Like I went through the school and honestly we only had one chapter on menopause and that was very brief. So अब मैंने ट्रेनिंग करी and I went to Harvard and all that, and now even doctors there at Harvard are admitting कि we don't have enough information कि menopause में क्या क्या चीजें होती है. But so far the data that I have collected, I think I just want to share with as many people that I can, because it's very important information for the quality of life. आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, तो आपके ऊपर बहुत चीजें ऐसी होती है आपके कंट्रोल में है, if you have the information. राइट, राइट। सो आपके ओपिनियन में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे क्या असर होता है? सो ये जैसे हार्मोन मेन जो है एस्ट्रोजन, राइट, जो जिसके लेवल्स बिल्कुल कम होते जाते हैं, तो एस्ट्रोजन का काम हार्ट हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा होता है. इट अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स, वो डायलेट करता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, आपकी हार्ट हेल्थ सही रहती है, आपके कोलेस्ट्रॉल पे अफेक्ट करता है, जिससे इनडायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर भी अफेक्ट होता है. तो एज एज यू गो थ्रू मेनोपॉज आपका एस्ट्रोजन खत्म हो रहा है, आपका हार्ट थोड़ा सा आपका अफेक्ट होगा, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा. आई ऑलवेज यूज टू हैव लो ब्लड प्रेशर, और माई डाइट इज द सेम, माई एक्सरसाइज द सेम, बट सडनली नाउ द ब्लड प्रेशर इज गोइंग अप हाई. इट्स बिकॉज द हार्मोन हैज गॉन. तो जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था हार्मोन का वो खत्म हो रहा है. So that's what's happening. And according to the Harvard study, number one cause of death in postmenopausal women is cardiovascular. It's more than cancer. It's more than any other, infection or anything like that. So cardiovascular is so, so important. ट्रू, वेरी ट्रू, इवन आई हैव रेड दैट। तो कैन यू गिव अस सम टिप्स के अपने हार्ट को हम किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं आफ्टर मेनोपॉज? So अगर आप जैसे आप healthy lifestyle गुजारते हो, so main three things are important. आपकी diet, आपकी activity level,
और आपका न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स एंड सपोर्ट सिस्टम एंड आपकी डॉक्टर की विजिट्स। मेक श्योर कि आप रेगुलर जाके अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड लेवल्स ये सब चेक कराते रहते हो, लाइक ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज ऊपर नीचे होता रहता है एज वी गो थ्रू द लाइफ. So make sure आप some people think that, oh, my life is the same. I eat the same food. I'm doing the same thing. So how come my belly is getting bigger? Hmm. No, it's like it's not the outside factors, but the inside factors are now acting on you, right? तो आपकी belly fat बहुत बढ़ जाता है. And Hmm. it's not because of the food you're eating, but because आपके hormones ऊपर नीचे जा रहे हैं. Cortisol है, stress की वजह से आपका cortisol बढ़ता है. So all these things need to be kind of taken into account. तो आप अगर आपकी डाइट सही रखते हो, you're eating more fruits and vegetables, आप प्रोसेस फूड नहीं ले रहे हो, एनीथिंग दैट्स कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट बी Right. केयरफुल ऑफ दैट. Yeah. वो नहीं खाओ. आपकी एक्सरसाइज लेवल सही रखो, मूवमेंट सही रखो, एंड कीप चेकिंग योर ब्लड प्रेशर एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स. Hmm. Okay. What about exercise की रूटीन में चेंज होना चाहिए? सो एक्सरसाइज का ये है कि आई एम गोना ऑल्सो टॉक अबाउट द बोन हेल्थ. दोनों के लिए, हार्ट और बोन दोनों के लिए, एज वी ग्रो ओल्डर, परसेप्शन ये है कि ज्यादा भागो, ज्यादा रन करो तो आपका सही रहेगा. दैट डजंट अप्लाई टू पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एनी मोर. आपकी ज्यादा टाइम आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डालना चाहिए, Hmm. बिकॉज आपका मसल मास लूज हो रहा है. सो आपकी सारी चीजें वीक हो रही है, तो आपकी बोन्स को कौन सपोर्ट करेगा? मसल सपोर्ट करता है. तो आपको स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए. सो स्पेंड मोर टाइम इन लिफ्टिंग वेट्स. भले थोड़े से आप कम वेट से स्टार्ट करो, 2 pounds, 5 pounds, but focus more on that rather than running in the treadmill for 1 hour. So there are certain tweaks that you need to make, and that will help with the sort of the whole picture of your body and thing. Hmm. So Or just daily, they recommend 150 minutes a week for like real exercise. That's the requirement by the World Health Organization. So 150 means कि आपको at least दिन में every day 30 minutes. So 30 minutes just exercising. So, many women say कि मैं तो सारा दिन घर में खड़ी रहती हूँ, मैं तो किचन में काम कर रही हूँ, तो मैं तो बैठी तो नहीं हूँ. But that's not exercise. Exercise is when your heart rate goes up, right? तो Hmm. आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो एरोबिक जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है. तो आप फास्ट वॉक कर रहे हो, या आप थोड़े से वेट्स उठा रहे हो, या so those things are called exercise, not just working in the house, which is good. It's very good to stay active, लेकिन that doesn't count in the exercise realm. Hmm. And of course, weightlifting अगर कोई कर रहा है start, तो they should do it under supervised यस यस, हाँ. जैसे guidance. अगर आपको ऑलरेडी डायग्नोज हो गया है कि आपकी वीक बोन्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है या कुछ है, दैट कुड बी रियली डेंजरस कि आपने एक साथ शुरू कर दिया एंड आई वांट टू बिल्ड मसल, बट दैट Hmm. माइट बी हार्मफुल. सो ऑलवेज गेट सम एडवाइस फ्रॉम अ पर्सनल ट्रेनर, या आप जिम में जाओ जहाँ पे क्वालिफाइड पीपल होते हैं. दे कैन Hmm. लुक एट योर हिस्ट्री एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर. डू इट स्लोली. Right, right, right. So, तो अज़मीना, आपने बताया कि मेनोपॉज के बाद हार्ट में जो डिफरेंस आप एक्सपीरियंस हम करते हैं, और बोन में क्या एक्सपीरियंस करते हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पोस्ट मेनोपॉजल विमेन का बहुत कॉमन होता है फ्रैक्चर्स. विमेन कम इनटू द ईआर विद फ्रैक्चर्स ऑफ द हिप, फ्रैक्चर्स ऑफ द स्पाइन. और ये होता है बिकॉज ऑफ आपका वही एस्ट्रोजन बोन पे एक्ट करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से बोन की रिसॉर्प्शन, रिसॉर्प्शन मीनिंग कि वो पिघलना शुरू हो जाती है अंदर से. इट बिकम्स वेरी ब्रिटल. जैसे वो नहीं हम्म. खोखला हो जाता है दरख्त, ऐसा हो जाता है. सो इट राइट. स्टार्ट्स टू ब्रेक. द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे वो वीक हो रही होती है, आपको सिम्टम्स पता नहीं चलते टिल यू हैव अ फ्रैक्चर. हम्म. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप 40s में हो या इवन लेट 30s में, अपनी बोन स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर दो. मेक श्योर आपका कैल्शियम इनटेक इनफ है. डेयरी इज इनफ. डेयरी आप मिल्क ले रहे हो, योगर्ट ले रहे हो, चीजेस ले रहे हो. जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, वो आप वेजिटेबल से भी ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, राइट. और आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बट मेक श्योर यू टॉक टू द डॉक्टर कि आपकी कोई और मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है. But हम्म. it's very important to start building bone in your 40s as much as you can,
बिकॉज इसका कोई वार्निंग साइन नहीं आता कि आपकी बोन्स पिघलना शुरू हो गई है। द अदर थिंग दैट विमेन आई रिकमेंड कि आप 50s के आसपास हो अगर, तो ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर एंड आस्क देम फॉर अ बोन डेंसिटी टेस्ट। Okay. Usually, most doctors are aware of this. They might prescribe it, पर अगर नहीं करते तो you should ask. It's called the DEXA scan. वो Mm-hmm. आपको बता देगा कि आपकी बोन की कंडीशन क्या है, right? So either एक होता है osteopenia, which is starting of osteoporosis. That's like a warning sign. और फिर osteoporosis is कि आपका शुरू हो गया है brittle bone. So अगर आपको बोल रहा है कि osteopenia है, तो that means you have time now to reverse it. तो आप डाइट से करना शुरू कर दो। आप कैल्शियम लो, विटामिन डी लो, सनशाइन लो, मेक श्योर योर स्लीप इज गुड बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और आप ऐसे ऐसे फूड्स खाओ कि जिसके अंदर ये विटामिन डी और कैल्शियम ज्यादा हो। सो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग द बोन मास। जितना Mm-hmm. ज्यादा बोन मास बिल्ड करेंगे उतना आपका फ्रैक्चर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट? Mm-hmm. सो व्यूअर्स, आज हमने डॉक्टर अज़मीना जहानी से बात की और उन्होंने हमें मेनोपॉज के बाद में हार्ट हेल्थ और बोन हेल्थ के बारे में शी गेव अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है तो आई विल पुट इन द ईमेल एड्रेस और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much, Dr. Azmina. That was very, very important, and thank you so much for giving us those valuable tips. No, thank you. Thank you for giving me the platform to share the knowledge. And yes, I welcome any queries or any questions regarding this. I'll be more than happy to answer. Great. Thanks. Thank you. Cheers to wellness. Cheers to wellness.